Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 11th and 12th. And in this I am teaching you Python and chapter number 4, and name of the chapter is Mutable and Immutable Data Type. What is the name of the chapter is Mutable and Immutable Data Type. In this today we are discuss compare to list. Okay, in this today we are discuss compare to list. How to compare two list? ठीक? We know that in Python we can compare two list with the help of two operator. One is double equal to, okay, it is known as comparison operator, and another one is with the help of each key. Okay, each key we can compare a list. We can compare a list with the help of double equal to and each. First we need to know what is double equal to. It compare both list element are same or not. Double equal to is a comparison operator and it compare both list element are same or not. It check the element of the list. क्या चेक करेगा ये? एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. एंड सेकेंड वन इज each keyword. Each keyword check both side of list are present at same memory location or not. It checks same memory location or not. Okay, it checks same memory location or not. Double equal to check both side element are same or not, and each keyword check both list present at same memory location or not. That is the difference between is and double equal to. That is the difference between each keyword and double equal to comparison operator. Okay, here you see this I am creating a list fruit 1. In this I am creating a list that name is fruit 1, and in this I am assign value orange, apple, mango. Okay, and another list I am create another list that name is fruit 2, and in this I am also give some value banana, mango and grapes. After that, I also create a third list that name is fruit 3, and in this I give the same name as first list. Okay, orange, apple and mango. Then when I print f1 equal to f3, when I print f1 equal to f3 and f1 is F3, then it what show the message. Then तो ये क्या मैसेज शो करेगा, हमें ये देखना है. We know that F1 and F2 are different, have different element, but F1 and F3 have same element. Okay, F1 and F3 had same element. See it, orange, apple, mango, orange, apple, mango. Okay, then it give true as a output. क्या देगा ये आउटपुट? ट्रू एज अ आउटपुट, बिकॉज both side of element are same, both side element are same, but is is what give the each keyword as a output? It give false as a output because we create list 1 and list 3 different list. Okay, so it store in memory at different place, so its memory location is not same, so it give false as a output. क्या देगा ये? false as a output देगा. तो चलिए इसका एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं. तो आ जाइए. First of all I am create a list fruit 1, and in this fruit 1, and in this I assign the value apple, orange, and mango. Okay, mango. I am also create another list that name is fruit 2. Okay, fruit 2, that name is fruit 2, and in this I am assign some element. In this I am assign some element like grapes,
grapes, banana and kiwi, banana and kiwi, okay, kiwi. And after that I am also create a third list that name is fruit 3, okay. In this I am giving the same element as a, मैं इसमें सेम एलिमेंट दे रहा हूँ जैसा कि मैंने a को दिया है, वही सेम एलिमेंट मैं इसको भी पास कर रहा हूँ. then we need to compare fruit 1 and fruit 2. क्या हमें करना है, fruit 1 और fruit 2 को कंपेयर करना है और fruit 1 और fruit 3 को कंपेयर करना है. So we know that fruit 1 and fruit 2 is not equal. Then in both case we get false as a output. So we compare fruit 1 and fruit 3. Okay, we compare fruit 1 equal to fruit 3. Okay, then those output it return we print that output. ठीक ना, जो आउटपुट ये रिटर्न करेगा उस आउटपुट को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे. ठीक ना, किसके हेल्प से, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से. किसके हेल्प से प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से. ऐसे ही हम क्या करेंगे, इज कीवर्ड की हेल्प से भी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे. इज कीवर्ड की हेल्प से भी हम इसको कंपेयर करेंगे और जो आउटपुट हमें देगा उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे. क्या कराएंगे, उसको हम प्रिंट कराएंगे. तो चलिए इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है. ठीक, तो मैं इसको रन कराया, तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स. देखो ट्रू क्यों आया, क्योंकि डबल इक्वल टू कंपेयर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, बोथ साइड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. देन fruit 1 and fruit 3 are have same element, so it gives true as a output. But when we compare it with the help of is, then it compare memory location. क्या करता है, it compare memory location of list. ये memory location of list compare करता है. then in our program we create two list, fruit 1 and fruit 3, and both lists are different place, though both lists are stored in memory at different memory location. So it give false as a output. If I am pass here fruit 1, then we know that fruit 1 and fruit 1 are the same memory location, so it give true as a output. क्या देगा ये, true as a output देगा. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ठीक, तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं. चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं. जनरेट लिस्ट यूजिंग रेंज. क्या मैंने बोला, जनरेट लिस्ट यूजिंग रेंज फंक्शन. ठीक, तो ये देखो कैसे हम जनरेट करते हैं. वी जनरेट लिस्ट यूजिंग रेंज फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन. किसकी हेल्प से हम जनरेट करते हैं, लिस्ट फंक्शन की हेल्प से. we know that range function is used to generate a range between given limit के हिसाब से ये क्या करता है, एक रेंज जनरेट करता है. एंड वी कन्वर्ट दैट रेंज इन लिस्ट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन. लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं. when we check type of that number variable, then it print class list because we make it list. हम क्या बनाएं इसको, लिस्ट. and when we print number, then it print number in list. तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा नंबर इन लिस्ट में. तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं. here we create number and we create a list using range function. Then first we define range function, and in this I create list 1 to 11. Okay, and those number it create, that number convert into list, so we use list function to convert that number into list. इस नंबर को हमने क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट किया. then when we print
type of the number, then it print class list. Okay, and when we print number, then it give the output as a list. तो ये क्या देगा, आउटपुट हमें लिस्ट में देगा। देखिए इसका टाइप क्या है, क्लास लिस्ट, मतलब ये नंबर क्या है हमारा, कैसा है, इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है। एंड इट ऑल्सो गिव आउटपुट इन अ लिस्ट है, और ये आउटपुट किस में दे रहा है, एक लिस्ट में दे रहा है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू पास अ लिस्ट टू अ फंक्शन। क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू पास अ लिस्ट टू अ फंक्शन टू टर्न ऑल द नंबर इन लिस्ट इनटू देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। ठीक ना, मैंने क्या बोला कि एक लिस्ट को पास करना है हमें, एक फंक्शन में एक प्रोग्राम बनाना है और एक लिस्ट को पास करना है हमारे फंक्शन में, और उस फंक्शन में क्या हो, जो निगेटिव जाए, जैसे निगेटिव 1 जाता है तो वो पॉजिटिव 1 हो जाए, और पॉजिटिव 1 जाता है तो निगेटिव हो जाए। तो हमें क्या करना है कि उस लिस्ट के एलिमेंट को अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करना है, और पॉजिटिव है तो क्या करना है, हमें निगेटिव में चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया निगेटिव लिस्ट। इसमें हमने क्या किया, एक लिस्ट पास कर दिया। क्या पास कर दिया, एक लिस्ट पास कर दिया। इसमें हमने एक निगेटिव लिस्ट क्रिएट किया, जो कैसी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। कैसी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। उसके बाद जो लिस्ट हमने पास की है उसमें उस पर क्या चला रहे हैं, हम फॉर लूप चला रहे हैं। इससे क्या होगा कि इस एल लिस्ट में जो भी एलिमेंट होगा एक एक करके आई में आएगा, और जो एलिमेंट आई में आएगा ना उसे हम क्या कर देंगे, निगेटिव करके अपेंड कर देंगे। और अपेंड किस में करेंगे, हम निगेटिव वाले लिस्ट में करेंगे। किस में करेंगे, हम निगेटिव वाले लिस्ट में। उसके बाद लास्ट में जब सारा काम हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे इस निगेटिव लिस्ट को। और आफ्टर दैट व्हेन वी रन इट देन वी गेट द आंसर एज अ अपोजिट ऑफ द नंबर। ओके, जैसे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, इसमें हमने इनपुट दिया 1 2 3 -5 10 15 11, देन वी गेट द आउटपुट एज -1 -2 -3 5। वाई वी गेट हेयर 5, बिकॉज वी पास -5। ओके, बिकॉज वी पास -5। then after we get 10 -10 -15 -11, so we make a program and do it practically. okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बनाना है, फंक्शन बनाना है। ठीक, तो हम उस फंक्शन को बनाते हैं, और फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, निगेटिव लिस्ट। क्या फंक्शन का नाम रखते हैं हम, निगेटिव लिस्ट फंक्शन का नाम रखते हैं। और इसमें हम एक एल लिस्ट पास करते हैं। इन दिस वी पास अ लिस्ट एल। इन दिस वी आल्सो क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट विच नेम इज निगेटिव। ओके, इट इज अ एम्प्टी लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट है। एंड इन दिस फंक्शन वी क्रिएट अ लूप, फॉर लूप that work on the list ओके, ये जो लिस्ट पे काम करेगा। एंड when one element of L is come inside I, then we make that element एज अ निगेटिव। हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव बना देंगे। और उसके बाद इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। और अपेंड कहाँ करेंगे, इस निगेटिव लिस्ट में। हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ठीक, इस निगेटिव लिस्ट में हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ठीक ना, इस निगेटिव लिस्ट में हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने लिस्ट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक ना, रिटर्न निगेटिव। जब हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, जब लिस्ट के सारे एलिमेंट को हमने निगेटिव कर दिया तो उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उसके पहले हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा
मैं एक लिस्ट बना दे रहा हूँ, लिस्ट ए, और इसमें वैल्यू डाल दे रहा हूँ 1 2 5 4 6 7, ठीक। और इसमें माइनस में भी कुछ वैल्यू डाल दे रहा हूँ 76, माइनस में एक वैल्यू और डाल दे रहा हूँ 23, और मैंने एक वैल्यू डाल दिया 45। ओके, एंड आफ्टर दैट वी कॉल दी निगेटिव लिस्ट फंक्शन। हम निगेटिव लिस्ट फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक। तो कैसे कॉल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम के हेल्प से कॉल करते हैं। एंड दैट फंक्शन नीड वन पैरामीटर एंड दैट पैरामीटर इज एल इज नोन एज लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को इस पैरामीटर में पास कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, लिस्ट को हमने पास कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो देखिए हमें आउटपुट सही देता है कि नहीं। तो देखिए जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो ये हमें आउटपुट सही दे रहा है। देखिए जो नंबर पॉजिटिव में नहीं है उन्हें पॉजिटिव में है उन्हें निगेटिव कर दे रहा है, और जो निगेटिव में है उन्हें क्या कैसा कर दे रहा है, पॉजिटिव कर दे रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेंटेंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।